الحمدللہ والصلاۃ للہ اما بعد۔ یہ کون آیا ہے محفل میں ہر سو ہے ضیا باری، قدم اٹھتے گئے ہوتی گئی گلشن میں گلکاری، رکھا تقدیر نے کس پہ یہ تاج سرداری، قدم کے ساتھ ہی چشمہ رحمت ہوئی جاری۔ حمائدین ملت، اساتین امت و طالب قوم، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کا دن ہے۔ آج ہمارے دل بے انتہا خوشی و مسرت سے لبریز ہیں، ہم اس کی ترجمانی کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ ہمارے دلوں میں کس کس طرح کی امنگیں انگڑائیاں لے رہی ہیں اور ہمارے جذبات و احساسات کس قدر مچل رہے ہیں، اور آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم الشان شخصیت تشریف فرما ہے جن کا خاندان علی، جن کا حسب و نسب مثالی، جو علم و عمل، زہد و ورع میں اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، جن کے سینے میں امت محمدیہ کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے، جو راتوں کو اٹھ کر امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کے لیے بارگاہ عزتی میں پیشانی رگڑتے ہیں، جو خلوت و جلوت ہر موقع پر خشیت الہی سے لبریز رہتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے قدیم و عظیم تنظیم جمعیت علماء ہند میں بحیثیت جنرل سیکریٹری رہ کر وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، جو باطل کے سامنے کبھی ڈرے نہیں، جھکے نہیں، جنہوں نے ہر محاذ، ہر پلیٹ فارم پر بے باکی سے اپنی بات رکھی اور اپنا شرعی موقف واضح کیا، جو ہمیشہ مذہبی تشدد اور قدرتی آفات و بلیات اور حوادث کے موقع پر عوام کے درمیان عوام کی دستگیری کرتے رہے۔ صفحے اول میں نظر آئے جو گلشن شیخ الاسلام کے خوشبودار پھول ہیں، جو موجودہ وقت میں صدر جمعیت علماء ہند ہیں۔ میری مراد جانشین فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید محمود آزاد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور ہم خدام دارالعلوم حسینیہ کے لیے مزید خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت اس ادارے کے سرپرست بھی ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری پر ہم خدام دارالعلوم حسینیہ و طلبہ اساتذہ عمیق قلب سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کہتے ہیں، اور عقیدت و محبت، خلوص و وفا کے تمام تر جذبات و احساسات کے ساتھ ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں، اور اہلاً و سہلاً مرحبا کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آپ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، آج آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے جو ادارہ دارالعلوم حسینیہ آپ کے سامنے ہے، اس ادارے کے قیام کے لیے بانی مدرسہ قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ کو کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ ادارہ ظلمت کدہ، بدعت کدہ کے جوف میں واقع ہے۔ جس وقت یہ ادارہ یہاں قائم کیا گیا تھا، یہ پورا خطہ ریڈ لائٹ ایریا تھا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے یہ پورا خطہ عیاشی و فحاشی کا اڈا شمار کیا جاتا تھا۔ اس خطے میں جو لوگ روز روشن میں آتے تھے ان کو لوگ بد کردار اور بدتینت سمجھتے تھے کہ جائے کہ شب تاریخ میں آئے۔ بانی ادارہ حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ قیام ادارے سے قبل نوکٹہ ضلع کشن گنج میں قیام پذیر خدمت خلق میں مصروف تھے۔ چنانچہ اس وقت ایک وقت حضرت نوکٹہ کی خدمت میں آیا جس میں اسلام پور و اطراف کے ممتاز علماء دین شامل تھے، خصوصاً حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی استاد دارالعلوم حسینیہ، حضرت مولانا تمیز الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سابق استاد دارالعلوم حسینیہ، حضرت مولانا شمس الدین صاحب سیتل پور معاون دارالعلوم حسینیہ، ماسٹر پیر محمد صاحب اور ان کے دیگر رفقا اور اس وقت میں حضرت نوکٹہ کے سامنے اسلام پور شہر میں اپنے مکتب فکر کے دینی ادارے کی اشد ضرورت ہونے کی بات کہی، اور حضرت کو
यहाँ की पूरी सूरत हाल से आगाह किया। हजरत ने उनकी बातों को संजीदगी से लिया, इस बारे में महव तफक्कुर हुए और कुछ अहबाब से मशवरे भी किए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये बात भी मालूम होनी चाहिए, हजरत मौलाना इदरीस साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हदीस दारुल उलूम हुसैनिया के शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद के तिलमीज़ रशीद और आखिरी खलीफा व मजाज थे। हजरत नौकट्टा को शेखुल इस्लाम और उनके खानवादे से इश्क के दर्जे का लगाव था। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के वफात के बाद हजरत बिदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू सदर जमीयत उलमाए हिंद से मुंसलिक होकर उनके तवज्जुहात और फयूज़ बरक़ात के मज़हर व मरकज़ बने। हजरत बिदाए मिल्लत को हजरत नौकट्टा से बहुत मोहब्बत थी और हजरत नौकट्टा को भी उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। हजरत नौकट्टा की कोशिश रहती थी कि जमीयत के हर जलसे में शरीक हों, चाहे वो किसी भी रियासत में हो। और हजरत बिदाए मिल्लत का जब भी बिहार, बंगाल और आसाम बल्कि नॉर्थ ईस्ट में दौरा होता था तो आप जरूर हजरत नौकट्टा को याद फरमाया करते थे और हजरत शरीक सफर रहते थे। इत्तेफाकन इसी मौके पर जब क़याम मदरसे के सिलसिले में मशवरे और तबादले ख्याल होते रहे, हजरत बिदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। हजरत नौकट्टा ने हजरत बिदाए मिल्लत के सामने क़याम मदरसे के मुताल्लिक अपना इरादा जाहिर फरमाया और इलाके की पूरी नौइयत और उस वक्त की सूरत हाल से रोशना कराया। हजरत बिदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मदरसे की ज़मीन के मुआयने के लिए इस्लामपुर तशरीफ़ लाए और तकरीबन 10 जगहों का मुआयना किया, लेकिन कोई जगह मदरसे के लिए मौजू मालूम न हो पाई। बिलाखिर हजरत ने इसी जगह को जो इस वक्त दारुल हुसैनिया जिस पर कायम है कदम रखकर फरमाया, यही जगह मुनासिब है, अल्लाह के नाम से इदारा शुरू कीजिए, इसी कीचड़ से कमल खिलेगा और इसी इदारे की बदौलत यहाँ उजाला होगा, फिर तो बिदअत की तारीखियाँ छटेंगी, सुबह 9 का आगाज होगा, इसकी किरणें दूर तलक जाएंगी, ये इदारा आफ्ताब और महताब बनकर अपनी रोशनी बिखेरेगा और अब करीब यहाँ से गैर अखलाकी फिल्मों और बदतहजीबी का खात्मा होगा और इस इलाके की एक नई पहचान इस इलाके को एक नई पहचान मिलेगी। चुनांचे हजरत बिदाए मिल्लत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए 1989 में इदारे का आगाज कर दिया गया और हजरत शेख मुर्शिद के नाम पर इस इदारे का नाम दारुल उलूम हुसैनिया रखा गया। शुरुआती दिनों में ज़मीन की खरीदारी और अफराद साजी और माहौल साजी में कुछ दुश्वारियों का सामना हुआ, लेकिन अकाबिरीन की तवज्जुहात और दुआओं की बदौलत धीरे धीरे राहें हमवार होती चली गई और यहाँ के माहौल और माशरत और इस खित्ते के कई लोगों की सोच में तब्दीली आई और आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत नौकट्टा और अकाबिरीन उलमा के लगाए हुए इस गुलशन की कलियाँ उफ़क़ आलम पर खुशबू बिखेर रही हैं और यहाँ के हुफ़्फ़ाज़ और पढ़े हुए तलबा शरीयत मुतहरा के लिए सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इशहाद दीन में मसरूफ़ हैं। इस इदारा ने सैकड़ों जय्यदुल इस्तेदाद हुफ़्फ़ाज़ को कौम मिल्लत की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया है। यहाँ से पढ़े हुए तलबा कोई शेखुल हदीस हैं, कोई मुफस्सिर, कोई नहव में माहिर हैं, कोई सर्फ़ व फ़िक़्ह में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस इदारे के पहले मुदर्रिस जनाब क़ारी अब्दुल सलाम साहब मज़ाहिरी तकरीबन 33 सालों से खिदमत कुरान में लगे हुए हैं और पहले शागिर्द हजरत मौलाना व मुफ्ती क़ाज़ी फर्रुख इदरीस साहब कासमी जो जामिया इस्लामिया मज़हरुल उलूम खुशबाग नदिया मगरबी बंगाल में शेखुल हदीस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा इलाके में अपनी एक पहचान रखता है। उसके मुअल्लिकीन असातिज़ा जहाँ पहुँचते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है। बानी मदरसा की जहद मुसलसल और दुआओं के बिना पर इलाके में काफ़ी मोहब्बतें मिलती हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब गुज़श्ता सालों लॉकडाउन के लिबास का ऐलान किया गया, तमाम मदारिस मसाजिद पर पाबंदी लगा दी गई, तो उस वक्त भी इदारे के मुदर्रिसीन मुबल्लिगीन ने अपने अपने इलाकों में
कोविड नियमों को मद्देनजर रखते हुए तालीम और ताल्लुम को जारी रखा, अपने घर या मस्जिद को मकसद बना लिया और उनकी जफाकशी देखिए कि आधी तनख्वाह लेकर दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे रहे। हज़रत मौलाना हाशिम अख्तर साहब कासमी अल्ताबाड़ी में मकतब चला रहे थे। हज़रत मौलाना मुनीर निसाब फैज़ी सरकतपुर में और हज़रत क़ारी अब्दुल सलाम साहब और मज़ाहिरी और हाफिज़ अबू हुरैरा कासमी नौकट्टा में हज़रत की मस्जिद में, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब कासमी सीतलपुर में, हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहब दरनिया में, हज़रत मौलाना सरफराज साहब पांजीपड़ा में, हज़रत मौलाना अहमद हुसैन कासमी साहब आज़म नगर कटिहार में दर्स व तदरीस में मशगूल रहे। इस लॉकडाउन में कई तलबा हाफिज हुए। हज़रत मोहतमिन साहब के बड़े साहबजादे मोहम्मद सैफुल्लाह इदरीस भी इसी लॉकडाउन में अपने वालिद मुहतरम और चचा क़ारी मुज़फ़्फ़र इदरीस के पास हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। आप हजरात की मालूमात के लिए बता दूं, ये इदारा बेशुमार अकाबिरीन उम्मत के बरक़ात व असरात से फैज़याब है, दुआएं हासिल है। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे के मुताल्लिक़ फरमाया कि मदरसा ही नहीं बल्कि जामिया बनेगा। आप हजरात के सामने ये भी बात आनी चाहिए कि इदारा में तवीलुल मुद्दत के बावजूद वो तामीरी तरक्की नहीं हुई, दायरा वसी नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजूहात में से बड़ी वजह ज़मीन की खरीदारी का मसला था। एक बड़ी रकम तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए ज़मीन की खरीदारी और रजिस्ट्री वगैरह में सर्फ की गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन का मसला खत्म हो चुका है। पहले ही के तहत आप हजरात की तवज्जुहात व इमदाद हासिल नहीं तो इंशाअल्लाह जल्द ही तामीरात का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और तमाम शोबाजात को मुस्तहकम बनाया जाएगा। आखिर में फिर हम खुदाम एक बार सदर जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और साया निशान इस्तक़बाल ना करने पर माज़रत ख़्वाह कि आप कहाँ और हम कहाँ, कि आप कहाँ और हम कहाँ, ज़र्रे को आफ्ताब बनाने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब।